لاہور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ مسلم ٹاؤن، اچھرا، مال روڈ، جیل روڈ، کلمہ چوک کے اطراف جل تھل ایک ہو گیا۔ جہلم شہر اور گردنواہ میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری، طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، نکاسی آب کا سسٹم ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جی ٹی روڈ سمیت اہم شاہراہوں پر زیر آب آ گئی۔ نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ پوش علاقوں میں بھی بارش کا پانی کا نکاس نہ ہو سکا۔ ملک بھر میں موسلادھار بارشیں، بجلی کا شارٹ فال بھی کم ہو گیا۔ حالیہ بارشوں کے باعث شارٹ فال کم ہو کر 3869 میگا واٹ پر آ گیا۔ بجلی کی کل طلب 27000 میگا واٹ ہے، جبکہ طلب کے عوض بجلی کی مجموعی پیداوار 23131 میگا واٹ ہے۔ شدید بارشوں کے باعث نکاسی آب کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ان ایکشن، نشیبی علاقوں سے جلد نکاسی آب کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور سمیت دیگر شہروں کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو نکاسی آب کے لیے ضروری ہدایات جاری کر دی۔ کہا واسطہ حکام اور انتظامیہ نکاسی آب کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے، ضروری مشینری کے ذریعے نکاسی آب کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حارث علی حمزہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہونے والی تیز بارش نے تباہی مچا دی۔ لاہور میں ہونے والی تیز بارش لوگوں کے لیے زحمت بن گئی اور مختلف علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے باعث لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا۔ موسلادھار بارش کے باعث جناح ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال میں پانی داخل ہو گیا، جس کے باعث مریضوں اور طبی عملے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گجرانوالہ میں بھی تیز بارش کے باعث پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا، جبکہ ضلع انتظامیہ مکمل ہونے پر منظر عام سے غائب رہی۔ شہری اپنی مدد کے تحت پانی کی نکاسی کرتے نظر آئے۔ پنڈ داڑن خان میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا اور مسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کوٹ عمر میں پہاڑوں سے بہہ کر آنے والے بارش کے پانی میں کئی مویشی بہہ گئے۔ دینا میں بھی رات بھر سے جاری بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جبکہ دینا شہر اور مضافاتی علاقوں کے کئی گھروں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے املاک کو نقصان پہنچا۔ دینا شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں پانی بھر جانے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ سرگودا، چنیوٹ سمیت دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش جم کر برسی۔ اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، لاہور میں تباہی مچا دی بارش نے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہونے والی تیز بارش نے تباہی مچا دی۔ لاہور میں ہونے والی تیز بارش لوگوں کے لیے زحمت بن گئی اور مختلف علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے باعث لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا۔ موسلادھار بارش کے باعث جناح ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال میں پانی داخل ہو گیا، جس کے باعث مریضوں اور طبی عملے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گجرانوالہ میں بھی تیز بارش کے باعث پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جبکہ ضلعی انتظامیہ
मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब रही। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी की निकासी करते नजर आए। पिंड दादन खान में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा और मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कोट उमर में पहाड़ों से बहकर आने वाले बारिश के पानी में कई मवेशी बह गए। दीना में भी रात भर से जारी बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दीना शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों के कई घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से अमलाक को नुकसान पहुंचा। दीना शहर की सड़कों और गलियों में पानी भर जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। सरगोदा, चन्योट समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश जमकर बरसी। शेखुपुरा में बारिश ज़हमत बन गई। गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद बेग से। जी महमूद बेग, बताइएगा इंतज़ामिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं? मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद में। मेरे साथ मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद के चीफ ऑफिसर इमरान असगर सिंधु साहब। उनसे जानेंगे कि हुकूमत की जानिब से जो आज बिल्कुल शहर और इसके मज़ाफ़ात में मूसलाधार गरज चमक के साथ होने वाली बारिश जो है अब्र रहमत भी बनी है और कुछ इलाकों के लिए अब्र ज़हमत भी बनी है। हम इस वक्त मौजूद हैं रीगल चौक में, जहां पर गली महलों चौकों चौराहों में बारिश का पानी जो है 3-3 फुट तक जमा हो चुका है। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला गायब है, जबकि डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील की जानब से मकीनों को सफ़र से ग्रेज करने की हदायत की गई हैं। जहां पर पानी ज़्यादा खड़ा हो वहां से रुकने की भी हदायत की गई है। बिजली की लटकती हुए तारों और बिजली के पोलों से दूर रहने की भी हदायत की गई है। जबकि गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाद हवस और गर्मी का जोर टूट चुका है। मरझाए हुए चेहरे खिल चुके हैं। जी मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। फिरोज वटवा में बारिश का पानी कब्रिस्तान में जमा हो गया। कई कब्रें पानी में डूब गई। शहरियों का कहना है कब्रिस्तान में बारिश का पानी जमा हो जाना मामूल बन गया है। कई मरतबा शिकायत की, लेकिन इंतजामिया के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। इस हवाले से मजीद जानते हैं कब्रिस्तान में मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, इंतजामिया का क्या कहना है इस मामले पर? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज वटवा में। फिरोज वटवा में गुज़िश्ता अदवार से जो बारिशों का सिलसिला जारी होने की वजह से गलियों महलों में तो पानी जो है वो खड़ा हो चुका है, मगर उसके साथ साथ जो हमारा मकामी कब्रिस्तान है इसमें जो है जगह जगह पानी खड़ा हो गया। कब्रों में जो है वो गड्ढे पड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी, उनसे जानते हैं कि उनका कब्रिस्तान की सफाई और इन गढ़ों के हवाले से उन्होंने क्या कहना है। जी इत्थे कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। इंतजामिया से कि साड़ी पुरजोर अपील है, हर साल कब्रों वाला नुकसान बहुत होता है। इस वास्ते साड़ी आखिरी आराम गाह है। साड़ी पिंड की इंतजामिया के भी और जिले की इंतजामिया के भी पुरजोर अपील है कि इनका मुस्तकिल हल कढ़िया जाए। जो बार बार जो साड़ियाँ आखिरी आराम गाह ने प्यारे अग्नियाँ उन्होंने नुकसान होता है, इनका कुछ ना कुछ मुस्तकिल हल किया जाए। इन आके पानी का कुछ ना कुछ किसी पास निकास किया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ये जो है ये हमारी आखिरी आराम गाह है। मरने के बाद हम साहब ने इधर ही आना है। इन कब्रों में जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं। पानी के निकलने का जो निकास है वो बिल्कुल भी नहीं है। नाले जो है वो बंद हो चुके हैं और बारिश बनने की वजह से जो कब्रें हैं उनमें गड्ढे पा रहे हैं। इसका जल्द अज जल्द इनकी आला इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील है कि जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए ताकि ये जो मसला है इसको फौरी तौर पर हल करवाया जाए। जी करेंगे इलाहाबाद का, जहां बारिशों से निपटने के लिए तमाम कर दिया गया है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सावल से, जो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद में चीफ ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। जी अरशद, क्या कहना है CEO का?
कमेटी इलाहाबाद में मेरे साथ मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद के चीफ ऑफिसर इमरान असगर सिंधु साहब। उनसे जानेंगे कि हुकूमत की जानब से जो बारिशों की पेशन गोई हुई है उससे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद ने क्या अमली इक़दाम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक जैसे ये मानसून का सीज़न चल रहा है, इसमें हमारे पास जितनी भी हमारी मशीनरी है वो सारी फंक्शनल है और सारी डे एंड नाइट काम कर रहे हैं और हमारे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हमने पूरी तरह यूज़ कर रहे हैं और हमारा स्टाफ भी जो है ईद से लेके ऑनवर्ड अभी तक वो 24 आवर जॉब कर रहे हैं, रात को भी लगे होते हैं। आप लोगों ने देखा है ये मेन रोड्स की जो पानी आप लोगों की लाइंस का सिस्टम नहीं है तो उनको हमने लिफ्ट ही करना होता है, वहाँ पे भी स्टाफ रात के टाइम भी डिप्यूट है, रात के टाइम पे भी वो काम कर रहे होते हैं। जी, जैसा कि आपने चीफ ऑफिसर साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि हमारा अमला हर वक्त तैयार है, हमारी जो डिपोजिट गाड़ियाँ हैं वो भी हर वक्त तैयार रहती हैं तो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। जी बहुत शुक्रिया अरशद सावल, आपने तफसीलन आगाह किया। कसूर शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया मगर बारिश के साथ ही मुतअद्दिद फीटर स्ट्रिप होने से बिजली गायब हो गई। मूसलाधार बारिश से गलियों मोहल्लों में पानी जमा हो गया, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शदीद बारिशों के बायस निकासी आब का मामला, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नशेबी इलाकों से जल्द निकासी आब का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर समेत दीगर शहरों के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को निकासी आब के लिए ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वासा हुकाम और इंतज़ामिया निकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए, ज़रूरी मशीनरी के ज़रिए निकासी आब को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। शदीद बारिशों के बायस निकासी आब का मामला, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नशेबी इलाकों से जल्द निकासी आब का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर समेत दीगर शहरों के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को निकासी आब के लिए ज़रूरी हदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है वासा हुकाम और इंतज़ामिया निकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएँ, ज़रूरी मशीनरी के ज़रिए निकासी आब को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। अहम खबर आपको बताते चलें कि शदीद बारिशों के बायस निकासी आब का ये मामला है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नशेबी इलाकों से जल्द निकासी आब का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर समेत दीगर शहरों के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को निकासी आब के लिए ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वासा हुकाम और इंतज़ामिया निकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए, ज़रूरी मशीनरी के ज़रिए निकासी आब को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सूबे में सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल, नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारों के इक़दामात और रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया। महमूद खान ने मुतल्लिका हुकाम को मुतासरीन की फौरी माली मुआवनत और बहाली की हिदायत भी की। वज़ीर आला KP ने कहा टांग में सूरत हाल मामूल पर आने तक अवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मेडिकल कैंप्स को जारी रखा जाए। मुतासरा इलाकों में वबाओं से बचाव के लिए स्प्रे वगैरह की सरगर्मियाँ जारी रहनी चाहिए। वज़ीर आला महमूद खान ने मज़ीद कहा कि हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी और उनकी तमाम सहूलियात फराहम करेगी। सियालकोट में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की खसूसी हिदायत पर रेस्क्यू 1112 की टीमें ज़िला भर में बारिश में फंसे लोगों की मदद के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। तफसीलात मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। सियालकोट सुबह से जारी बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़े पानी में फंसे लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू अहलकार मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं
और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने लोगों से अपील की है कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, बारिश के दौरान और बाद में भी बिजली वाले पोल और तारों को हाथ लगाने से गुरेज करें। कच्चे मकानों की छतों और दरख्तों के नीचे पनाह ना लें। अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। किसी भी एमरजेंसी सूरत में रेस्क्यू हेल्पलाइन 1122 पे कॉल करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी, कोहिर नूर न्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान एंड कंपनी के झूठ को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि इंतहाई शर्मनाक है कि किस तरह इमरान खान ने आइन को मजरूह करने की कोशिश की, और शर्मनाक है कि इमरान खान ने हुकूमत की तब्दीली का झूठ तैयार किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने इमरान एंड कंपनी के प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सबके लिए पढ़ना ज़रूरी है। अहम खबर आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान एंड कंपनी के झूठ को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि इंतहाई शर्मनाक है कि किस तरह इमरान खान ने आइन को मजरूह करने की कोशिश की, और शर्मनाक है कि इमरान खान ने हुकूमत की तब्दीली का झूठ तैयार किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने इमरान एंड कंपनी के प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सबके लिए पढ़ना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने इमरान खान एंड कंपनी का झूठ बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने इमरान खान के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने आइन शिकनी करते हुए हुकूमत की तब्दीली की। जिस तरह साजिशी बयानिए का रंग देने के लिए झूठ गढ़ा है वो इंतहाई काबिल शर्म है। सबको अदालत का यह फैसला ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आवाम के लिए अच्छी खबर, वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत आज से ही सस्ती की जाएंगी क्योंकि वज़ीर आज़म आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से अपने बयान में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ता करने की समरी मिल गई है और नई कीमतों के लिए 15 जुलाई का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि IMF को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने पर एतराज़ नहीं है और IMF के साथ माहिदे पर पूरी कौम को मुबारकबाद है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि कौम मुश्किल फ़ैसलों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है और पूरी कौम ने मुश्किल फ़ैसलों में हुकूमत का साथ दिया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत आज ही सस्ती की जाएँ क्योंकि वज़ीर आज़म आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से अपने बयान में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ता करने की समरी मिल गई है और नई कीमतों के लिए 15 जुलाई का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि IMF को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने पर एतराज़ नहीं है और IMF के साथ माहिदे पर पूरी कौम को मुबारकबाद है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि कौम मुश्किल फ़ैसलों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है और पूरी कौम ने मुश्किल फ़ैसलों में हुकूमत का साथ दिया है। बंगा हयात रहनुमा PTI MPA PP 191 मियाँ फ़ारूक मुमताज़ खान मानिका और साबिक़ा ज़िला नाज़िम मियाँ असदुल्ला मुमताज़ खान मानिका की बंगा हयात प्रेस क्लब में आमद हुई और बंगा हयात प्रेस क्लब में रहनुमा PTI MPA PP 191 मियाँ फ़ारूक मुमताज़ खान मानिका, मियाँ असदुल्ला मुमताज़ खान मानिका, मियाँ नूर मोहम्मद फ़ारूक मुमताज़ खान मानिका, मियाँ इस्माइल मुमताज़ और मियाँ दिलावर असद मुमताज़ खान मानिका की बंगा हयात प्रेस क्लब में आमद हुई। बंगा हयात प्रेस क्लब अहदेदारान और मेंबर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। MPA मियाँ फ़ारूक मुमताज़ खान मानिका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया रियासत का तीसरा सतून है और सहाफ़ी माशरे की आंख कान का किरदार अदा करते हैं और हम बंगा हयात प्रेस क्लब को सहाफ़ियों की मस्बत रिपोर्टिंग और इलाके के मसाइल उजागर करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। चौधरी आसिफ बशीर नुमाइंदा कोहिर न्यूज़ ने यह रिपोर्ट कवर की। उन्होंने बताया कि
बंगा हयात रहनुमा PTI MPA PP 191 मियाँ फ़ारूक मुमताज़ खान मानिका और साबिका ज़िला नाज़म मियाँ असदुल्ला मुमताज़ खान मानिका की बंगा हयात प्रेस क्लब में आमद हुई। बंगा हयात प्रेस क्लब में रहनुमा PTI MPA PP 191 मियाँ फ़ारूक मुमताज़ खान मानिका, मियाँ असदुल्ला मुमताज़ खान मानिका, मियाँ नूर मोहम्मद फ़ारूक मुमताज़ खान मानिका, मियाँ इस्माइल मुमताज़ और मियाँ दिलावर असद मुमताज़ खान मानिका की बंगा हयात प्रेस क्लब में आमद हुई। बंगा हयात प्रेस क्लब अहदेदारान और मेंबरान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। MPA मियाँ फ़ारूक मुमताज़ खान मानिका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया रियासत का तीसरा सतून है और सहाफ़ी माशरे की आँख कान का किरदार अदा करते हैं और हम बंगा हयात प्रेस क्लब को सहाफ़ियों की मस्बत रिपोर्टिंग और इलाके के मसाइल उजागर करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। खबर शामिल करेंगे बंगा हयात से, जहां रहनुमा PTI MPA PP 191 मियाँ फ़ारूक मुमताज़ खान मानिका और साबिका ज़िला नाज़िम मियाँ असदुल्ला मुमताज़ खान मानिका की बंगा हयात प्रेस क्लब में आमद हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अदालती फैसले ने इमरान खान के बैरूनी साजिश के बयानिए में आखिरी कील ठोंक दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असम्बली तहलील करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली तहलील के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुल तफसीली फैसले में डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर आइनी करार दिया और जमहूरी तारीख में इस फैसले को रोशन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। अदालती फैसले के इजाफी नोट में लिखा गया था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बदनीयती पर मबनी थी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए और इमरान खान ने सदर को असम्बली तहलील करने की सिफारिश की, वो भी गैर आइनी थी। 7 मार्च को साइफर पहुंचा और 27 तक वज़ीर आज़म ने इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और अगर साजिश हुई तो इसे पार्लियामेंट के सामने लाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने पार्लियामेंट के सामने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डेरा गाजी खान के हल्का PP 288 में PTI आज पावर शो करेगी। फैक्ट्री मोड़ के मुकाम पर पिंडाल सज चुका है, जबकि कप्तान खिलाड़ियों का लहू गरमाने शाम को जलसागाह पहुंचेंगे। DG खान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन खलोल से। जी अमीन, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम डेरा गाजी खान का इलाका सीमेंट फैक्ट्री के मोड़ के ऊपर मौजूद हूँ। सीमेंट फैक्ट्री मोड़ के ऊपर जो चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान है, वो उसका जो जलसा है वहीं होने जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो पैनाफ्लेक्स भी लगाए गए हैं और यहाँ पर जो स्टेज है इनका, मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, 80 फुट का स्टेज यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें स्टेज के ऊपर मुख्तलिफ तो जो तस्वीरें भी वो लगाई गई हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात ये है, यहाँ पर जो सरदार उस्मान बुज़दार है, सरदार उस्मान बुज़दार की जो तस्वीर है वो पैनाफ्लेक्स के ऊपर नहीं लगाई गई है। यहाँ पर जो ख़वातीन के लिए बैठने की भी जगह बनाई गई है, कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं, लेकिन मर्द हजरात है उनके लिए यहाँ पे जगह कुर्सियाँ नहीं लगाई गई। यहाँ पे जो इमरान खान तकरीबन 4:30 के करीब यहाँ पे जो अपने जलसागाह पहुँचेंगे, अपना जो कारकुन है उनका लहू। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आपने तफसीलन आगाह किया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे एबटाबाद से, जहां जायदाद के तनाज़े पर करीबी रिश्तेदार ने 3 साला बच्चे अब्दुल हादी को बहिमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उबैदुर्रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। न ज़मीन फटी न आसमां गिरा। एबटाबाद थाना नाड़ा की हदूद में मासूम 3 साल के बच्चे के साथ करीबी रिश्तेदार ने जिनसी तशद्दुद करके कत्ल कर दिया और नाश जंगल के वीराने में दफन कर दी। वालिदैन के मुताबिक मासूम बच्चा ईद के दूसरे रोज़ 11 जुलाई दिन 2 बजे गाँव चंदू मेरा
حدود थाना नाड़ा से अब्दुल हादी शाह लापता हुआ, जिस पर थाना नाड़ा में लापता बच्चे के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज़ किया गया। सरसरी तफ्तीश के दौरान मुलज़म ने निशानदेही पर मुलज़म के घर से मुल्हिका इलाका छुई जंगल से बच्चे की नाश बरामद कर ली गई। मज़ीद तफ्तीश पर बच्चे से जिनसी ज़्यादती की तस्दीक भी हुई, जिस पर मुलज़म ने बतलाया कि उसने साबिक़ ज़मीन के तनाज़े की रंजिश पर बाप की मुशावरत से 3 साला बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल किया। पुलिस ने मुलज़म मुदस्सर शाह को गिरफ़्तार करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। तो उसके बाद उसने अपने जो छुपाने के लिए जो है उसको एक जगह पर दफन कर दिया था, वहाँ से इंशाल्लाह उनकी निशानदेही पर हमने वो निकाल। इस मौके पर डीपीओ एबटवा सजाद खान ने बच्चे के वर्सा से मुलाकात के दौरान इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। उबैद रहमान सुलेमानी, कोहिनूर न्यूज़ टीवी, एबटवा। कराची से पंजाब जाने वाली अवामी एक्सप्रेस से एक शख्स गिरकर जाँ बहक हो गया। शिनाख्त नवीद बरोही के नाम से हुई। रेलवे पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेलवे इंतज़ामिया और शहरियों ने रेलवे पुलिस को इतला दी। पुलिस के मुताबिक वर्सा का पता ना लग सका है। कोटरी साइट में दुकानें बंद कराने का मामले पर 2 ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग और पथराव के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को कोटरी DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और तमाम मामलात में काबू पा लिया। कोटरी साइट में दुकानें बंद कराने का मामला पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ है। फायरिंग और पथराव के नतीजे में 2 अफराद जख्मी। जख्मियों को कोटरी DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और तमाम मामलात को काबू में कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।